All right, so good evening, everyone. My name is Shubhank. I am trainer for Power BI in Radical. So, to give a quick intro about myself, so currently I am working in IT industry and in reporting from last 9 years now, and similar for Power BI as well. My work experience is around 9 years. I'm in training industry as well for around now 6 years, and in with Radical, this is my fourth year running. So that's all about me, and you can ask about me more. But let's start with the demo first. So this session is not exactly the demo. This is ideally going to be the first session of Power BI course, which you can take as a demo. All right. So feel free to ask any questions and interact as much as you can. You can ask any question. Don't consider that you are asking any silly question or something. Nothing is silly. If you are learning, then nothing is silly. Everything is important, right? So feel free to ask anything. Before that, do you want me to ask anything specific, or shall I proceed with the session? Anyone? English, Hindi, both will work. I don't understand Marathi. English and Hindi both, yeah, comfortable. Ashwankar, we are good. Let's proceed then. All right, thanks, Praveen. Okay, so about the syllabus. So, I mean, if talking completely about the course, so this course will contain 12 assignments in between. So overall, we are going to cover 100 topics. It's not about 100 topics. Whatever the syllabus is, I have divided the syllabus point by point sequentially, and from start to end, learning Power BI from zero till reaching at the 100% level, we are going to cover almost 100 points. Now, once we are going to cover this 100 points, in between, we are going to do some assignments. Okay. In total, I am going to give you 12 assignments. These assignments are not going to be very easy. My way of teaching is, it's little bit different. So I do not give assignments which will boost up your confidence and like that. No, these assignments are not going to be the simple one. They are going to be exactly in the complexity level, like the work you are going to get in your projects whenever you will work in your office in Power BI. So whatever the complexity will be there given by your clients, assignments are of that level. सो मुझे वो आई मीन मैं वो फॉलो नहीं करता हूँ कि मैं आपको एक सिंपल असाइनमेंट दूँ, आप कर लो एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे से बन जाएगा. इट्स नॉट यूजफुल. सो असाइनमेंट शुड बी हैविंग द सेम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक यू आर गोइंग टू फेस इन ऑफिस. सो इन टोटल में आपको मिलेंगे 12 असाइनमेंट्स. वे ऑफ असाइनमेंट्स विल बी, let's say I have told you 100 topics. So after completing every 3 to 4 topics, this is the syllabus, by the way. I will cover up this as well. So after completing 3 to 4 topics, I am going to give you one assignment. Again, after completing 3 to 4 topics, 5 topics approximately like this, we are going to cover one assignment. This assignment will be done in the class itself. I will guide you in that assignment. It is not like कि मैंने पढ़ा दिया अब आप assignment करो. No. असाइनमेंट इज लाइक अ सेल्फ एवेल्युएशन. अपन 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर एक असाइनमेंट करेंगे क्लास में ही. जितना बनेगा ट्राई करेंगे, और अपार्ट उसके बाद फिर मैं बताऊंगा. ओके. सो इन दिस वे आपको ये पता चलेगा कि असाइनमेंट से कि करेंटली आपने जो 4-5 टॉपिक पढ़े हैं वो आपको समझ आए भी या नहीं आए. सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना है, सिर्फ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कोर्स नहीं कंप्लीट करना है, समझ में आना चाहिए, सीखने को बनना चाहिए. एंड रिजल्ट क्या है, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो तो इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए. अगर आप ऑलरेडी पावर बीआई में काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो काम करते आना चाहिए, राइट. तो ऐसे धीरे धीरे करके देयर विल बी 12 असाइनमेंट्स. जब फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन बिग असाइनमेंट. इंडिविजुअल टॉपिक्स के असाइनमेंट्स अलग रहेंगे. फिर जब फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक बिग मेजर असाइनमेंट रहेगा विच इज गोइंग टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस. सिमिलरली जब सेकेंड हाफ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, वी आर गोइंग टू सी वन मेजर असाइनमेंट्स जो सेकेंड हाफ का सिलेबस का रिवीजन देगा, लाइक दिस. इस तरीके से वी विल कवर अप 100 topics. We will cover up entire Power BI concepts in these topics.
Along with this, we are going to do assignments. Now, after completing the syllabus assignments, we will see dummy project. So I'm going to give you two dummy projects. Dummy projects will give you the idea how you will work with your client. Client कैसे आपको काम देगा, किस किस तरीके से client आपको काम दे सकता है और आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको समझ आना चाहिए. कुछ clients होते हैं, आपको टोटल में मतलब दो तरीके के client मिलेंगे. एक client होता है जिसको टेक्निकल नॉलेज होगा, उसको पावर बीआई के बारे में पता है कि इसमें कौन सा ग्राफ है, क्या फीचर है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन दिस टूल. तो वो क्या करेगा, आपको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देगा, मुझे ये वाला ग्राफ बना के दो, उसमें ये कलर होना चाहिए, लाइक दैट. एक हो गया इस टाइप का असाइनमेंट, सॉरी आई मीन टू से प्रोजेक्ट. दूसरा प्रोजेक्ट एक मैं आपको दूंगा, आई विल गिव यू टू प्रोजेक्ट्स. दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको दूंगा वो आपका प्रैक्टिस कराएगा कि कभी कभी आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जिनको पावर बीआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको टेक्निकल कुछ आइडिया नहीं है, दे आर बिजनेस पर्सन, उनको नहीं मालूम कि पावर बीआई में क्या हो सकता है. सो दे विल जस्ट गिव यू द डेटा एंड यू हैव, दे विल गिव यू फ्री हैंड. फ्री हैंड मतलब वो आपको बोलेंगे कि आप अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज कितना है आप उसको दिखाओ और एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना के दो. तो ऐसा भी नहीं है कि अपने को ये आदत हो कि जो अपन बनाएंगे हमसे वही आता है, या ऐसा भी नहीं है कि जो क्लाइंट बताएगा हमें वही करना है. हमें दोनों तरीके से एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि एक ही कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको आपका क्लाइंट दोनों तरीके से काम दे सकता है. ऑलराइट, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है कि इंटरव्यू क्लियर ना हो सके. तो उसके लिए आई विल गिव यू टू dummy projects. After that, I will help you in your resume building and I will also give you some interview guidance, interview tips. Okay, this is all about the course. कुछ और पूछना है कोर्स में किसी को? कोई questions? Please ask. Anyone? Sir, I joined late. I have asked some questions, sir. Hello? Yes, yes, I can hear you. Sir, please हाँ, cover पूछो. the power BI question. Like SQL वगैरह होगा क्या कुछ नहीं? क्या बोला? सॉरी. सर SQL वगैरह आप लेंगे या पावर BI में? देखो एसक्यूएल का क्या है, गुड क्वेश्चन. एसक्यूएल का क्या है कि एसक्यूएल के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पावर बीआई में यूज होते हैं, लाइक ज्वाइंस कैसे बनाते हैं, डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं, रिलेशनशिप कैसे लगाते हैं, और डेटा एडिटिंग में भी कुछ पार्ट है एसक्यूएल के. तो क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल टूल पे नहीं जाएंगे. रीजन, एसक्यूएल के जो कॉन्सेप्ट्स है वो पावर बीआई में टोटली डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं. तो कॉन्सेप्ट सेम है. अगर मैं बोलूँ ज्वाइंस, दो टेबल के बीच में दो टेबल्स को मुझे ज्वाइन करना है, तो ये काम एसक्यूएल में भी होता है, ये काम पावर बीआई में भी होता है, बट दोनों में टोटली डिफरेंट तरीके से होगा. तो हम पावर बीआई वाला मेथड देखेंगे, हम एसक्यूएल वाले मेथड पे नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू पावर बीआई. पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एसक्यूएल, हाँ, पावर बीआई के अंदर. ओके, मतलब सर इंटरव्यू में हमें ये नहीं पूछेंगे ना आपको SQL का नॉलेज है या नहीं? नहीं, वो आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे. कंपनी स्पेसिफिक, अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एसक्यूएल प्लस पावर बीआई वाले लोग चाहिए, तो वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि फिर उनका रिक्वायरमेंट ऐसा है. पर अगर प्योरली पावर बीआई का इंटरव्यू है तो वो आपसे एसक्यूएल नहीं पूछेंगे. सर प्योरली पावर BI पे रिक्वायरमेंट्स रहते हैं ना बहुत? हाँ, रहती है, हमेशा रहती है. अच्छा. ओके, गुड. ये अच्छा क्वेश्चन था आपको एक. और कोई? सर पावर BI और टैबलो में वो क्या डिफरेंस है, मतलब मुझे इससे थोड़ा. हाँ, पावर बीआई और टैबलो में डिफरेंस क्या है कि आइडियली देखा जाए तो टोटली डिफरेंट ही है. बस दोनों टूल का काम एक ही है, रिपोर्ट्स बनाना. दैट्स द ओनली सिमिलरिटी. अदरवाइज पावर बीआई में काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है और टैबलो में काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है. तो सिर्फ बोलने को है कि दोनों रिपोर्टिंग टूल्स हैं, बट दोनों एकदम अलग अलग तरीके से काम करते हैं. एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है, रिपोर्ट बनाते हैं. सर पावर BI डेस्कटॉप और डेवलपर में क्या डिफरेंस है दोनों? पावर बीआई डेवलपर कुछ नहीं होता. पावर बीआई डेस्कटॉप वो टूल है जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो. दिस इज पावर बीआई डेस्कटॉप टूल. अगर आप यहाँ ऊपर देखो तो क्या लिखा है, पावर बीआई डेस्कटॉप. तो जो टूल होता है उसका नाम है पावर बीआई डेस्कटॉप, और एक होता है पावर बीआई का क्लाउड. पावर बीआई क्या है? पावर बीआई क्लाउड बेस्ड टूल है. क्लाउड बेस्ड टूल क्या होता है? जैसे आपको गूगल ड्राइव पता है क्या होता है? गूगल ड्राइव,
Yes, yes, yes. तो गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड। आप अगर अपने लैपटॉप में एक फाइल रखे हो तो उस फाइल को आप कब ओपन कर पाओगे? जब आपका लैपटॉप आपके पास होगा। बट अगर आपने वो फाइल गूगल ड्राइव में डाल दी तो नाउ इट इज ऑन क्लाउड। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी के भी लैपटॉप से, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। Yes, सेम sir, it is. कॉन्सेप्ट पे पावर बीआई वर्क करता है। पावर बीआई का अपना एक क्लाउड है, उसका नाम है पावर बीआई सर्विसेज। तो पावर बीआई को बोला जाता है कि पावर बीआई इज अ क्लाउड बेस्ड टूल। मतलब पावर बीआई का जब आप पूरा रिपोर्ट बना लेते हो, उसके बाद उस रिपोर्ट को अपन क्लाउड पे पुट करेंगे और वहां से आपका क्लाइंट जो है वो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो पावर बीआई Okay, का sir, it's quite. हाँ Okay, okay, sir. Okay, continue, sir. ओके। तो पावर बीआई क्या है? क्लाउड बेस्ड टूल है। एक और कंफ्यूजन जो लोगों को है कि पावर बीआई एक ग्राफिकल टूल है। नो, मतलब आधा आंसर सही है, पार्शियल सही है। पावर बीआई इज नॉट ओनली ग्राफिकल टूल। पावर बीआई में पूरा डेटा एडिटिंग भी पावर बीआई के अंदर होता है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा लोग रिजेक्ट क्यों होते हैं आज की डेट में रिपोर्टिंग इंडस्ट्री में? पावर बीआई पिछले 5 साल से टॉप पे चल रहा है। इतना ज्यादा डिमांड है पर फिर भी रिसोर्सेज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि रिसोर्स जो लोग हैं उनको लगता है कि पावर बीआई एक सिर्फ क्लाउड बेस्ड टूल है जो कि रिपोर्ट्स बनाता है। और डेटा एडिटिंग जो है, डेटा मॉडलिंग जो है पावर बीआई के अंदर, कैसे डेटा को एडिट करना है, डेटा को क्लीन कैसे करना है, टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके एक डेटा मॉडल कैसे बनाना है, ये किसी को आता ही नहीं है। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब भी पावर बीआई में होता है। और इंटरव्यू में प्रॉब्लम है कि पूछा यही जाता है, डेटा एडिटिंग, डेटा मॉडलिंग, और वहां पे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि यूट्यूब से 4 वीडियोस देख के जाते हैं कि ग्राफ बना लिया। ग्राफ पूछा ही नहीं जाता इंटरव्यू में। ग्राफ कोई भी बना लेगा। जजमेंट वहां होती है कि डेटा एडिटिंग आता है कि नहीं आता। सो दैट्स वाई पावर बीआई का बहुत डिमांड है। इसमें आपको सर्टिफिकेशन एंड ऑल का कोई जरूरत नहीं है। आई मीन टू से वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन वाला, वहां तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना ज्यादा डिमांड है इस टूल का और कैंडिडेट्स इतने कम अवेलेबल है कि सर्टिफिकेट एंड ऑल कोई चेक ही नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि लोग ही नहीं मिल रहे उनको। गॉट इट? Hello, sir. या Hello, sir. I am currently working as a system engineer, but I want to switch into Power BI. तो मेरा experience count होगा या नहीं हो? एक्सपीरियंस आपका काउंट, मतलब आपका वो डिपेंड करता है कि आप अभी क्या काम करते हैं। Sir, as a desktop engineer, troubleshooting सब रहता है, सपोर्ट का काम। अच्छा, नहीं, पर आपका रिपोर्टिंग में कोई नॉलेज नहीं है ना अभी, Yes, sir. है ना? तो देखो, इसके लिए क्या होता है कि ये क्वेश्चन सभी लोग फेस करते हैं। तो क्या होता है कि पूरा सिलेबस और असाइनमेंट्स खत्म होने के बाद, अच्छा आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, ये पूरा सिलेबस और असाइनमेंट खत्म होने के बाद हम 2 डमी प्रोजेक्ट देते हैं। दोनों डमी प्रोजेक्ट जो है वो एकदम मतलब एक काइंड ऑफ वही क्लाइंट का ही रिपोर्ट है जिसका डेटा चेंज करके मैं उसको एज अ डमी प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आपको। उससे क्या होगा कि एक बार जो आपका डमी प्रोजेक्ट बन गया, आप जो बनाओगे, दैट कैन बी ट्रीटेड लाइक योर एक्सपीरियंस, और आप रिज्यूमे में उसी को दिखाओगे और उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो पावर बीआई में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पुराना एक्सपीरियंस भी इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। पावर बीआई सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिस में भी यूज होता है और स्कूल्स में भी यूज होता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसके लिए आपको आईटी इंडस्ट्री में, मतलब आपका कुछ आईटी इंडस्ट्री से कुछ रिलेशन नहीं भी है, देन ऑल्सो यू कैन वर्क इन दिस। तो इसका ये फायदा हो जाता है। तो पुराना वर्क एक्सपीरियंस उतना काउंट नहीं होता, पर जो डमी प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा वो आप अपने रिज्यूमे में आप दिखा सकते हो कि दिस इज योर करंट प्रोजेक्ट गोइंग, और वहां से आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ऐसा मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर यू, एटलीस्ट मेरे जान पहचान में 20 से 25 लोगों ने इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं विदाउट हैविंग एनी पावर बीआई नॉलेज फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस। ओके सर, एज अ फ्रेशर रिक्वायरमेंट रहती है ना पावर बीआई? नहीं, एज अ फ्रेशर पावर बीआई में कभी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एटलीस्ट आपको 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस तो दिखाना पड़ेगा। तो उस 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस को जो मैं आपको बोल रहा हूँ, डमी प्रोजेक्ट जो मैं आपको दूंगा, आप उसके बेसिस पे दिखा सकते हो। आई विल शो यू समथिंग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब लेट इट गेट ओपन।
जो डमी प्रोजेक्ट जो अपन करेंगे दैट कैन एक्ट एज अ एक्सपीरियंस टू यू, और आप उसको अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हो। पावर बीआई के साथ ये है कि आप इसको जीरो एक्सपीरियंस के साथ नहीं जा सकते। और एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि पावर बीआई में एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट कि पावर बीआई का ही हो। ओवरऑल आप फ्रेशर हो, अगर आप पहली बार जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो फिर नहीं हो सकता इसमें कुछ। सी दिस, कैन यू सी माय स्क्रीन? आ जाता है। I have question. यस। Why use Power BI, not to Tableau or Oracle? Okay, so why Power BI? Because Power BI is acting as a leader in the reporting industry from last 5 years. That is reason number one. Reason number two, Tableau कंपनीज को बहुत कॉस्टली पड़ता है। पावर बीआई का कॉस्ट है 700 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। 700 रुपीज कंपनी के लिए कुछ भी नहीं होता, बट Tableau में इट इज 70 to 80,000 रुपीज का लाइसेंस पर ईयर। ओके, तो डिफरेंस आ जाता है ऑलमोस्ट कितना, एक साल में यहाँ पे लगेगा 7 से 8 हजार रुपए, वहां पे लगेंगे 70 से 80,000। तो जितनी भी कंपनीज है वो अभी पावर बीआई पे ही शिफ्ट हो रही हैं। मतलब जो अभी नया काम करते हैं रिपोर्टिंग पे, वो पावर बीआई में ही करते हैं, और Tableau का सारा काम पावर बीआई पे माइग्रेट हो गया। दैट्स व्हाई पावर बीआई इज एक्टिंग एज अ लीडर फ्रॉम लास्ट 5 years। और उससे भी सबसे अच्छा एक मतलब रीजन ये है कि ये जो क्लाउड बेस्ड टूल है पावर बीआई एटलीस्ट 150 डेटा सोर्सेज को सपोर्ट करता है। डेटा सोर्सेज को सपोर्ट करना मतलब आप एसक्यूएल से भी डेटा उठा सकते हो, आप एक्सेल से भी उठा सकते हो, ऐसे करते करते 150 डिफरेंट वेज से आप पावर बीआई में डेटा लेके आ सकते हो। अलॉन्ग विद दिस पावर बीआई में एटलीस्ट 200 से ज्यादा ग्राफ से जो आप यूज कर सकते हो अपने रिपोर्ट में बनाने को, इतना कहीं नहीं मिलता। तो रिपोर्ट में आपका एक वैरायटी ऑफ ग्राफ्स हो जाते हैं, और डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत मतलब डैशबोर्ड से जो स्टोरी निकल के आ रही है कि आपका डेटा आपको क्या बता रहा है, वो बहुत इजी हो जाता है। या कैन यू सी अ डैशबोर्ड इन योर स्क्रीन? Yes, sir. या सो दिस इज गोइंग टू बी योर डमी प्रोजेक्ट। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी एज सच कुछ समझ में आएगा नहीं, वो सिलेबस के बाद ही समझ में आएगा। ये डमी प्रोजेक्ट है, ये आपको बनाना रहेगा। इसको बनाने के बाद इसको आप दिखा सकते हो अपने रिज्यूमे में एज योर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। और ऑफ कोर्स आपने बनाया है, मतलब आप बनाओगे तो आपको इसके बारे में इन एंड आउट सब पता होगा, विच यू कैन इजीली शो इट टू योर इंटरव्यूअर। और इंटरव्यूअर फिर क्या करेगा, जो चीज आप दिखाओगे, इंटरव्यू क्रैक करने का एक ट्रिक होता है, जो आप इंटरव्यूअर को दिखाओगे वो आपको उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप उसको ऐसा डैशबोर्ड बताओ जिसके बारे में आपको स्टार्ट टू एंड सब पता हो, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। 80% आपका इंटरव्यू आप खुद क्लियर कर लेते हो, और 20% बचता है कि आप उसको कैसा आंसर देते हो। ओके, सो आई विल हेल्प यू इन ऑल दिस, बट दिस इज जस्ट वन dummy project which I am going to give you in the end of the syllabus. All right, all clear? टोटल हम इसमें 100 टॉपिक्स पढ़ेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ देते हैं, दैट इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द टूल कि ये टूल क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 गेट डेटा से लेके गोइंग टिल पॉइंट नंबर 35 हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, दिस पार्ट इज कॉल्ड बैकएंड ऑफ पावर बीआई। बैकएंड ऑफ पावर बीआई क्या होता है, जो किसी को समझ ही नहीं आता कि ऐसा भी कुछ होता है। बैकएंड ऑफ पावर बीआई मतलब होता है कि क्लाइंट आपको जब डेटा देगा तो जरूरी नहीं है कि वो डेटा आपका करेक्ट फॉर्मेट में हो। करेक्ट फॉर्मेट मतलब डेटा तो सही है पर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है जैसा आपको चाहिए। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आपके किसी काम का नहीं। आप क्लाइंट को जाके ये नहीं बोल सकते कि आपका डेटा सही स्ट्रक्चर में करके दो, या आप उस डेटा को सही स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते, क्योंकि अगले दिन वो फिर कुछ डेटा देगा तो वो तो उसी फॉर्मेट में देगा। रोज रोज डेटा फॉर्मेट करते तो बैठोगे नहीं। तो पावर बीआई में क्या होता है, पावर बीआई का बैकएंड फीचर इतना स्ट्रांग है कि एक बार आप पावर बीआई को बता दो कि डेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बाद नो मैटर वो क्लाइंट कितना भी उस डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में दे, पावर बीआई ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेगा उस फॉर्मेट में जो उसको रिक्वायर्ड है। ऑलराइट,
तो बैकएंड ऑफ पावर बीआई में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा डेटा को कैसे क्लीन करते हैं, डेटा को कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं, टेबल को कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं, टेबल्स को आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसे लगाते हैं। सो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 टिल पॉइंट नंबर 35 हम लोग पावर बीआई का बैकएंड समझेंगे। बैकएंड मतलब कि डेटा कैसे रेडी करना है। लोग क्या करते हैं, पावर बीआई पढ़ने बैठेंगे और पहले ही दिन से ग्राफ बनाना चालू। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ स्टार्टिंग के एटलीस्ट 4 से 5 क्लास तक हम ग्राफ के बारे में बात ही नहीं करेंगे। डेटा ही रेडी नहीं होगा तो आपसे डेटा रेडी करते नहीं बनेगा, तो ग्राफ काहे पे बनाओगे? गेटिंग द पॉइंट। और पूरा इंटरव्यू 80% ऑफ द इंटरव्यू ये पॉइंट नंबर 2 से 35 के बीच में क्लियर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार पावर बीआई का बैकएंड समझ में आ गया तो फ्रॉम पॉइंट नंबर 36 से लेके पॉइंट नंबर 71 तक, कहां से? 36 से लेके पॉइंट नंबर 71 तक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। वी विल अंडरस्टैंड ग्राफ अबाउट ग्राफ्स इन पावर बीआई। जो आपने डेटा रेडी करा था पॉइंट नंबर 2 से 35 में, अब उस डेटा के ऊपर अपन ग्राफ बनाएंगे। हम डिफरेंट टाइप से ग्राफ पढ़ेंगे, ढेर सारे ग्राफ है पावर बीआई में, हम वो कवर करेंगे। एक बार जब हमारा ग्राफ बन जाएगा तो अब हमें अपने रिपोर्ट को, जो हमारा पावर बीआई रिपोर्ट है, उसको एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन भी देना है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ग्राफ बना के बस रख दिया। नो, इट शुड लुक लाइक अ रिपोर्ट, अ प्रॉपर रिपोर्ट। जैसा एक आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी टेक्स्ट कहीं लिखा है, कोई फोटो कहीं है, कोई कुछ कहीं है, ऐसा नहीं होता। सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में वेल अरेंज्ड होता है। आपको भी सेम काम करना है। सो फ्रॉम पॉइंट नंबर 72 से लेके पॉइंट नंबर 81 तक, 72 से लेके 81 तक वी विल मेक द रिपोर्ट क्लीन। क्लीन मतलब हम लुक एंड फील पे काम करेंगे। किस पे? लुक एंड फील, मतलब आपकी रिपोर्ट कैसी दिख रही है। अट्रैक्टिव दिखेगी रिपोर्ट तो ही लोगों को समझ में आएगी, राइट? अब यहाँ पॉइंट नंबर 81 पे आपकी पावर बीआई रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। एक बार जब पूरा रिपोर्ट कंप्लीट हो गया तो अभी तक ये आपके लैपटॉप में ही है, आपने क्लाइंट से शेयर नहीं करा। अब इस रिपोर्ट को सीधा का सीधा क्लाइंट से शेयर नहीं करोगे ईमेल पे या कुछ पे। क्यों नहीं करोगे? 2 कारण है। पहला, ये रिपोर्ट कई बार बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है। इट कैन बी मोर देन 700 MB 800 MB। तो आप 700 MB का फाइल मेल पे शेयर कर ही नहीं सकते, राइट? दूसरा पॉइंट है कि आप अगर क्लाइंट को ये पावर बीआई फाइल शेयर कर दोगे तो इसमें जो भी आपने फॉर्मूला वगैरह लगाए हैं अपना डेटा कैलकुलेशन बनाने में, मैं उस पर अभी इसके बाद आता हूँ, जो भी आपने इसमें फॉर्मूला वगैरह बनाया है, लॉजिक बनाया है, वो क्लाइंट को दिख जाएगा। एक बार क्लाइंट ने अगर देख लिया ये काम कैसे करते हैं, तो अपने कंपनी में किसी लोकल को हायर करेगा और आपका जॉब चला जाएगा, राइट? कभी भी क्लाइंट को पूरा का पूरा फाइल नहीं दिया जाता। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पावर बीआई की फाइल को उसके क्लाउड पर डालेंगे। पावर बीआई का अपना एक क्लाउड होता है जिसका नाम है पावर बीआई सर्विसेज। सो फ्रॉम पॉइंट नंबर 82 से लेके पॉइंट नंबर 85 तक, छोटा सा पोर्शन है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। फ्रॉम पॉइंट नंबर 82 से लेके पॉइंट नंबर 85 तक, दिस इज क्लाउड पोर्शन ऑफ पावर बीआई। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी रिपोर्ट जब बन जाती है तो उसको क्लाउड पे कैसे डालते हैं और वहां से फिर उसको क्लाइंट को कैसे शेयर करते हैं और उसको आगे कैसे मैनेज करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज योर ऑल पावर बीआई सिलेबस टिल पॉइंट नंबर 85। उसके आगे क्या है वो अभी मैं बताता हूँ, पर अभी तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ क्लियर करना है? कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछो। दिस इज योर ओपन प्लेटफॉर्म, जो पूछना पूछो। आई एम श्योर आप अगर इस मीटिंग में हो आप कुछ सोच के ही ज्वाइन करे होगे कि आपको सीखना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तभी डिसाइड किया है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। सो यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। All right, if no questions, then what is from point number 86 to 100? पावर बीआई में क्या होता है? पावर बीआई इज नॉट, अब मैंने आपको बताया, अभी तक लोग समझते थे पावर बीआई क्या है, सिर्फ इसमें ग्राफ्स बनाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पावर बीआई में सिर्फ ग्राफ नहीं बनता, पावर बीआई में पूरा का पूरा डेटा का एडिटिंग होता है। पूरे डेटा का एडिटिंग कर सकते हैं, पूरे डेटा की मॉडलिंग कर सकते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। एक तीसरी चीज और पावर बीआई में है, उसको बोलते हैं डैक्स लैंग्वेज।
डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन, उसका नाम होता है डेक्स लैंग्वेज। ये डेक्स लैंग्वेज क्या चीज है? डेक्स लैंग्वेज एक तरीके की एक लैंग्वेज है जो पावर बीआई को सपोर्ट करती है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको पहले से आनी चाहिए, ये बहुत छोटा सा पार्ट है जो हम पावर बीआई सिलेबस के लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये लैंग्वेज क्या करती है, ये आपको कैलकुलेशंस करने में हेल्प करेगी। पावर बीआई के अंदर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब एकदम हाई फाई चीज वैसा नहीं। सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सपोज एक कॉलम है, उस कॉलम में सैलरी लिखी हुई है, सैलरीज है। क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरे को एक नया कॉलम बना के दो कि साल के एंड में मैंने सबका सैलरी 10% बढ़ा दिया। तो व्हाट इज द 10%? अगर मैं सारी ओरिजिनल सैलरी को 10% से बढ़ा दूं तो अब नया सैलरी कितना होगा वो बताओ। दिस इज द कैलकुलेशन। अब आप कैसे करोगे? आप डेटा सोर्स पे जाके नहीं करोगे। सपोज क्लाइंट ने आपको एसक्यूएल पे डेटा दिया या क्लाइंट ने आपको एक्सेल पे डेटा दिया, तो आप एक्सेल एसक्यूएल में जाके नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपको डेटा सोर्स पे राइट एक्सेस होगा ही नहीं, आप डेटा सोर्स पे कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये सारा काम आपको कहाँ करना है? पावर बीआई के अंदर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर बीआई का कि इसके अंदर आप बेसिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। कर सकते हो क्या? करना ही पड़ेगा। मतलब क्लाइंट जब रिपोर्ट शेयर करता, क्लाइंट जब रिपोर्ट बनाने को देता है तो आपको उसमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अब वो कैलकुलेशंस करते आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? ये डेक्स लैंग्वेज को यूज करके। यूजुअली ये कहीं सिलेबस में कवर नहीं किया जाता है क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज है, बट मेरे को लगता है कि एटलीस्ट बेसिक इसका आना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 86 to 100 मैं इसका बेसिक पोर्शन कवर करता हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस। इसको फंक्शंस बोलते हैं। सम कैसे करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं कैलकुलेशंस में। सो फ्रॉम पॉइंट नंबर 86 to 100 दिस इज डेक्स लैंग्वेज इनसाइड पावर बीआई। हम इसको भी कवर करेंगे। दिस इज योर सिलेबस। कुछ पूछना है किसी को? ऑलराइट। तो अब एक क्वेश्चन, अब एक बात आती है कि जो डेटा एडिटिंग है ये कैसे होगी। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे को पहले कभी आईटी इंडस्ट्री का उतना नॉलेज नहीं है, या कोई बोल सकता है कि मैं आईटी में तो हूँ लेकिन मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल ये सब नहीं आता। तब क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि एक पावर बीआई के अंदर सबसे अच्छा बात जो है, जो पावर बीआई आज आईटी इंडस्ट्री के अंदर रिपोर्टिंग साइड पे पावर बीआई का सबसे ज्यादा डिमांड क्यों है? क्योंकि इसमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे अगर मैं आपको बेसिकली सिंपली एक चीज बोलूं कि सपोज आपके पास एक कॉलम है, मान लो उसमें डेट मेंशन है। उसमें डेट ऐसे मेंशन है कि सपोज आज की डेट है 21 मार्च 2023। ऐसे ढेर सारे डेट्स मेंशन है एक कॉलम में। अब मैंने आपको बोला कि आप एक फाइंड आउट करो कि मेरे को बताओ कि सपोज यहाँ पे 1000 रोज है टोटल, उसमें डेट्स मेंशन है, 3-3.5 साल का डेटा है। मैं आपको बोलूं कि मेरे को बताओ कि इस 1000 रोज में से कौन सी वो डेट्स है जो सैटरडे या संडे को आती है। तो अब आप क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 21 मार्च 2003 को कौन सा डे था। मंडे था या ट्यूसडे था या वेडनेसडे था, कौन सा डे था। ऐसे सारे निकालने पड़ेंगे, फिर आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन से डे सैटरडे या संडे पे फॉल होते हैं। पॉइंट। अब ये अगर आप एसक्यूएल में रहोगे तो आपको एक प्रोग्रामिंग कोड लिखना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल में रहोगे तो एक्सेल में भी आपको एक प्रोग्रामिंग कोड लिखना पड़ेगा। बट पावर बीआई में आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना। सबसे अच्छी बात पावर बीआई के अंदर क्या होती है कि सपोज अगर ये काम आपको करना है, जो मैं आपको बताया, आपको ये काम करना है। लेट्स से दिस इज यू आर अ यूजर। ठीक है, आप यूजर हो। लेट्स से दिस इज पावर बीआई टूल। ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज मेमोरी ऑफ पावर बीआई जो सारा काम करती है। अब क्या होगा, अगर मैंने आपको ये जो सिनारियो दिया है, अब अगर ये सिनारियो आप प्रोग्रामिंग कोड से लिखते तो तभी लिख पाते जब आपको वो प्रोग्रामिंग कोड लिखते आता हो। तो पावर बीआई के अंदर क्या है, एज अ यूजर आप पावर बीआई को, इस टूल को
इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हो अपने नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि यार इस 21 मार्च 2003 को देखो, 2023 में देखना आज कौन सा डे है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे आज ट्यूसडे है। या मैं अगर आपको बोलूं कि यार 15 फरवरी 2023 को कौन सा डे था, आप क्या करोगे? आप कैलेंडर खोलोगे, देख के बता दोगे। इतना इजी क्यों है? क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, आप एक ह्यूमन हो, और हम दोनों ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इजी है। अब अगर यही चीज मेरे को आपको कोई प्रोग्रामिंग कोड लिख के समझानी पड़ती तो डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? वही डिफिकल्टी पावर बीआई में रिमूव हो जाती है। यू एज अ यूजर, आप पावर बीआई टूल को उसी ह्यूमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दोगे जैसा मैंने अभी आपको समझाया। पावर बीआई क्या करेगा? अब पावर बीआई तो एक टूल है, तो एक टूल है। अब टूल तो ह्यूमन लैंग्वेज समझेगा नहीं, पर फिर आपकी बात कैसे समझेगा? टूल तो प्रोग्रामिंग कोड से बना होगा। कोई भी टूल है वो तो एक प्रोग्रामिंग कोड ही समझेगा। पर अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये कैसे काम करेगा? तो यहाँ पावर बीआई में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? एज अ यूजर आप टूल को इंस्ट्रक्शन देते हो ह्यूमन लैंग्वेज में, जो मैंने आपको बताया। टूल अपने से एक प्रोग्रामिंग कोड बना के मेमोरी को शेयर कर देता है। आप एज अ यूजर टूल को ह्यूमन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हो, पावर बीआई उस ह्यूमन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग कोड में खुद से कन्वर्ट कर लेगा और अपने मेमोरी को शेयर कर देगा। मेमोरी क्या करेगी? इस डेट पे कौन सा डे था, संडे मंडे ट्यूसडे, वो काउंट वो देख लेगी और मेमोरी रिटर्न करेगी टूल को, और टूल रिजल्ट रिटर्न कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे जितना भी जो मैं आपको बता रहा हूँ डेटा एडिटिंग का काम जो होता है, ये आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू नहीं करना है। दैट्स व्हाई पावर बीआई इज यूज्ड सो मच इन द आईटी इंडस्ट्री नाउ। आप उसको ह्यूमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दो, वो अपने से पूरा प्रोग्रामिंग कोड खुद से बना लेता है जो उसको समझ में आता है, पर आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने का नीड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज सो मच इन यूज नाउअडेज। गॉट द पॉइंट? कोई है यहाँ? So Shivank, actually, is this actually comes under the no code, low code kind of things Yes, here? you can say that it can comes under no code, low code. Yes. Okay. Okay. Even actually, even 10% also coding is not required here. Sorry? Even 10% coding is also not required here. या देखो, एक कंफ्यूजन मतलब आगे आगे ना आए इसलिए कंफ्यूजन दूर करता हूँ। कोडिंग अगर मैं आपको बोलूं तो हार्डली 1% में बोल सकता हूँ। अब मैं कोड किसको Okay. बोल रहा हूँ यहाँ पे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2 या 3 लाइन का कोड लिखना है तो ये मैक्सिमम हो गया। मतलब 3 लाइन का कोड मैक्सिमम हो गया। तो ऑन एन एवरेज आपको अगर 1 लाइन मैक्सिमम लिखना पड़ सकती है, वो भी किधर लिखनी पड़ेगी? डेक्स लैंग्वेज में। वो डेक्स लैंग्वेज जब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कुछ, वहां पे आपको 1 या 2 लाइन लिखनी पड़ सकती है, अदरवाइज नो कोड। और ये जो डेक्स लैंग्वेज है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक कैलकुलेशन वाली लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन लगाती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर है 5, एक नंबर है 3, मुझे इसका सम बताओ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सम 5 3, बस ये हो गया कोड। ऐसा वो .NET या जावा या एसक्यूएल वैसा वाला कोडिंग नहीं। ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज कोड। सम फंक्शन, उसके अंदर दोनों नंबर, रिजल्ट आ जाएगा 8। ऐसे बस इतना ही करना है। Same as actually how we are entering in the Excel. एक्सेल, यस। तो जैसे एक्सेल में विदाउट कोडिंग एंड ऑल काम होता है, यहाँ पे उतना भी नहीं करना है। एक्सेल में अगर आपको ये डेट्स मेंशन करता और अगर इस डेट्स में से आपको डे निकालना होता, तो फिर भी एटलीस्ट आपको 1 लाइन का तो लिखना ही पड़ेगा। पावर बीआई में वो भी नहीं करना है। इट विल वर्क इन फ्यू क्लिक्स। जस्ट आपको एप्लिक टूल यूज करते आना चाहिए, नो कोडिंग। Okay. Okay. तो हम ये बोल सकते हैं, can we say that actually it's easy to learn this actually Power BI? Yes, it compared is to it is very easy to learn. That's why it is very much in use, and that's why it can be used by non-IT people also. IT वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, उनको चीजें समझ में आती हैं, पर जो non-IT वाले भी हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि उनको भी चीजें समझ में आती है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा नहीं है। Okay. Got it. तो मतलब जब आप
पावर बीआई का स्पेसिफिकली मैं बोल सकता हूँ कि जब आप पावर बीआई में किसी ऑफिस में अपने क्लाइंट के साथ या मतलब किसी टीम में काम करोगे, तो डोंट बी सरप्राइज कि यार ये पर्सन तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही नहीं है, देन हाउ ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री। नो मैटर इन पावर बीआई कहीं से भी हो, यू कैन स्टार्ट लर्निंग दिस टूल। ऑलराइट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रिपोर्टिंग टूल में क्या फायदा होता है कि इसमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता कि यार ये कहाँ यूज होगा या ये आईटी ऑफिस में यूज होगा। नो, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। मेरा जो काम है, मेरा काम तो आईटी का है, पर मेरी कंपनी एक फील्ड जॉब वाली कंपनी है, रिफाइनरीज में काम करती है। तो मेरे पावर बीआई डैशबोर्ड कहाँ यूज होते हैं? वो जो इंजीनियर्स होते हैं वो रिफाइनरीज में जाते हैं, रिफाइनरीज में वो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी उनके मेजरमेंट्स होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और वहीं उनके पास एक टैबलेट होता है, वो टैबलेट में एक्सेल में डेटा डालते जाते हैं, सामने अपने रिफाइनरीज में मेजरमेंट करके डेटा डालते जाते हैं। वो मेरे को डेटा शेयर करते हैं, मैं उनको पावर बीआई रिपोर्ट बना के देता हूँ। वो रिपोर्ट उनके टैबलेट पे आ जाती है। एट अ टाइम वो अपने रिपोर्ट में चेक करते रहते हैं कि अच्छा, अगर मैंने ये वाला मेजरमेंट को 10 सेंटीमीटर से बढ़ा के 20 सेंटीमीटर कर दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 1 सेकंड के अंदर पावर बीआई रिपोर्ट उनको पूरा एनालिसिस बता देती है कि अगर ये नंबर आपने इधर से इधर कर दिया तो क्या होगा। इजी फॉर देम। तो जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में लैपटॉप हो तो ही आप पावर बीआई यूज कर पाओगे, आप मोबाइल से यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये टूल सबसे ज्यादा यूज होता है। फील्ड जॉब वाला भी यूज कर सकता है और आईटी जॉब वाला भी यूज कर सकता है। स्कूल टीचर्स यूज कर सकता है अपने स्कूल का डेटा बनाने में। सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब वाले भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, धीरे धीरे सारी कंपनी जो है वो डिजिटल साइड पे ही मूव कर रही है। धीरे धीरे आप देखोगे अभी होने भी लगा है कि कंपनी के बड़े बड़े डेटा जो है अब वो लेंथी एक्सेल फाइल्स में नहीं रहते, दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्राफ्स। जो कंपनी का हायर मैनेजमेंट होता है उसको ग्राफ समझ में आते हैं, उसको डेटा में ये समझ में नहीं आता कि ये डेटा किस फॉर्मेट में है, क्या है, उसको ग्राफ समझ में आता है। दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी आउटडेटेड। अगर आईटी इंडस्ट्री चल रही है तो डेटा पे चल रही है, डेटा है तो रिपोर्टिंग टूल है। सो दिस इंडस्ट्री कैन नेवर बी आउटडेटेड। दैट्स व्हाई बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इसकी डिमांड को बढ़ाते जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, काइंड ऑफ थिंग है। Shivank, one more question. So, after this, right? Actually, means like if you think kind of after a couple of years, like this Power BI person can think of about data science and all the things, right? Yes, पावर बीआई में क्या Okay. होता है, मैं आपको अगर सॉरी, यू कैन कंटिन्यू योर क्वेश्चन व्हेन आई स्टार्ट। No, it's okay. Means like, okay, that's one way actually. Means like where you wanted to achieve. Other thing Yeah. is about, is there any other way? Okay, Power BI के बाद दूसरी kind of, if I don't want to go data science, and even actually I don't want to stuck in this kind of Power BI as well. I wanted to learn something advanced. Is there anything else other than actually data science? देखो, इसमें क्या होगा कि आप डेटा साइंस के भी आगे तो नहीं जा सकते, दैट इज द एंड पॉइंट एज ऑफ नाउ। पर पावर बीआई के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इफ आई गो टू दीज आर फ्यू ऑफ द ग्राफ्स व्हिच आर रेडीली अवेलेबल इन पावर बीआई, एंड देयर इज अ पावर बीआई गैलरी, वो मैं आगे कभी बताऊंगा। देयर इज अ पावर बीआई गैलरी जहां पे 200 से ज्यादा ग्राफ है। बट बैक टू द टॉपिक, Power BI supports R and Python language. This R and PY this is Python. So R and Python is a medium to do data science. Now Azure machine learning and artificial intelligence is also a medium for data science. These all are supported inside Power BI. तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि पावर बीआई एक सेंट्रलाइज्ड टूल बनता जा रहा है जो सारे इंटीग्रेशंस को कवर कर रहा है। तो पहले जो होता था कि आप पाइथन का कोड लिखते थे, वहां से कुछ डेटा एनालिसिस करके लाते थे, फिर जो डेटा निकल के आता था उस पे पावर बीआई पे ग्राफ बनाते थे। अब क्या है कि यहाँ पावर बीआई के अंदर ही वो पाइथन का कोड लिखा जाएगा, डेटा एनालिसिस होगा, उसी पे ग्राफ बनेगा, एवरीथिंग एट वन टूल, लाइक दैट। तो पावर बीआई के बाद अगर आप
पूछोगे तो आई विल सजेस्ट यू गो ऑन द आर और पाइथन और अज्योर साइड, बिकॉज अज्योर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद पावर बीआई. ओके, Okay. बट अपार्ट फ्रॉम डेटा साइंस नो, क्योंकि रिपोर्टिंग इंडस्ट्री का हायर अम्ब्रेला ही वही है, डेटा साइंस. Okay. And if you know Python, that's again additional advantage you will get. दैट्स अ वेरी गुड एडिशनल एडवांटेज. पाइथन आने से क्या फायदा है कि मैंने आपको जो बताया कि इसमें 200 के आसपास ग्राफ हैं. सपोज आपको उनमें से एक भी नहीं आपके उसमें फिट बैठ रहा, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी वाइड नंबर, बट इफ स्टिल यू वांट टू मेक समथिंग ऑन योर ओन, आप आर लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज को यूज करके आप अपना एक ग्राफ बना सकते हो. यू कैन डिजाइन योर ओन ग्राफ बाय आर एंड पाइथन. So this is an additional advantage. And ऐसे धीरे धीरे करके ये आगे और भी जुड़ता जा रहा है इसकी चीजें. Okay? Shivang, sorry, I'm asking a lot of questions. No, but, okay. ये इसमें actually kind of right. Okay, kind of is there any role data architect kind of role where at least once you learn Power BI, you work couple of years and you do you have that option as a data architect or kind of things? I'm not getting your question exactly. Can you elaborate? Kind of, right? Actually, architect, like, okay, if someone says like, okay, I'm a Java architect, like, okay, in that case, a person knows Java, he worked on couple of years, he worked on Java, and after that he started working as a so-called architect or microservices and all the things comes. So once you worked in this kind of technologies like Power BI, Tableau, then after a couple of years, can you also go into that so-called? Is there any role called as architect in this data in this power after Power BI? I'm talking about in that terms. You are saying that after learning Power BI, can I go in some data architect line? Correct. Okay. That's yes. right. Definitely. After this, you can go in a very advanced level in data architect. Why? Because as I am saying that Power BI has now started integrating and continuing integration of Power BI with other tools like R, Python, I told you, machine learning, Azure, like that. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Amazon वेब सर्विसेज, जो मैं आपको अभी करंट एग्जांपल दूं, जो अभी मेरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, वी हैव अ आर्किटेक्ट. वो आर्किटेक्ट क्या करता है, मेरी जो कंपनी है वो रिफाइनरी का काम करती है, ऑयल रिफाइनरी का. तो ऑयल रिफाइनरी में जो साइट इंजीनियर्स हैं वो वहां पे मेजरमेंट करते हैं रिफाइनरी में कि ये पाइप का लेंथ इतना है, फिर इसमें जो ऑयल आया वो इतना फोर्स से आया, इतना क्यूबिक वॉल्यूम का उसमें ऑयल है, लाइक दैट. वो डेटा कलेक्ट करते हैं. वो क्या करेंगे, उनका अपना एक टूल है, उस टूल में डेटा फीड करते रहते हैं. वो टूल डेटा को उठा के कहाँ रख देगा, एसक्यूएल में. एसक्यूएल से आएगा AWS, Azure वेब सर्विसेज, सॉरी Amazon वेब सर्विसेज, वहां से AWS आएगा. AWS क्या करेगा, उसके कंटेनर्स बनाएगा, दैट मींस टू से डेटा क्लासिफिकेशन करेगा. वो उस डेटा को उठा के फिर से कहाँ रख देगा, एसक्यूएल में, नाउ इन अ मोर स्ट्रक्चराइज्ड. फिर एसक्यूएल से हम डेटा उठाएंगे पावर बीआई में, और पावर बीआई का डेटा इंटीग्रेशन अगेन वहां पे हो जाएगा. एक उनका पोर्टल होता है जहां पे वो जो साइट इंजीनियर जिससे डेटा स्टार्ट हुआ था, अब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके उसके पास एक ब्यूटीफुली बिल्ट डैशबोर्ड जाएगा. इसके बीच में AWS पे पूरा हमारा क्या बोलते हैं डेटा एनालिसिस हो गया, पूरा डेटा साइंटिस्ट वाला काम हो गया, एसक्यूएल का यूज हो गया. तो इसमें हमने सारा सिक्योरिटी लगा दिया कि किस पर्सन को कितना डेटा दिखना चाहिए. पावर बीआई आया तो उसमें पूरा डेटा को रिप्रेजेंटेशन बन गया, लाइक दैट. ये पूरा एक आर्किटेक्ट क्लियर कवर हो गया. तो वी हैव अ डेटा आर्किटेक्ट इन आवर प्रोजेक्ट. आई होप आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल, जो अभी मतलब ये रियल एग्जांपल which in which I am dealing with. Okay, got it. Thank you. Yeah. I mean, this is just one example which I have ready for you because I am going through it, but it might give you some idea कि data architect इसमें क्या use कर सकता है. So today I just gave you an overview about the course, about the tool. From tomorrow, we are going to start with the tool. We are going to start with our syllabus, that is topic number 1, tool overview. So from tomorrow I will going to start कि टूल में ये आइकन क्या करता है, ये क्या करता है,
ये फील्ड्स क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, सर वी विल कवर एवरीथिंग एंड देन वी विल सी कि आगे कैसे बढ़ना है। यस रूपाली। सर एक्चुअली मेरे एमएससी केमिस्ट्री हुआ है और मैं 2021 की पास आउट हूँ, तो मुझे कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं ना आएगा? अभी आप जॉब करते हो? नहीं सर, मैं मतलब फ्रेशर ही अप्लाई करूंगी। अच्छा देखो, तो फ्रेशर के लिए मैं आपको टू बी ऑनेस्ट हूँ, फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा ओपनिंग्स नहीं आएंगी, तो पर आप क्या? ये कर सकते हो। हाँ, फ्रेशर के लिए बहुत ओपनिंग्स नहीं आएगी। आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा फ्रेशर में। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो 1-1.5 साल एक्सपीरियंस कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता, बस होना, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं सर, मुझे कहीं भी नहीं है। हाँ, तो अभी उसके लिए आप ये कर सकते हो कि सिंस अभी आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब स्टार्ट करना है, तो आप सीख सकते हो। उससे क्या होगा कि आप, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पावर बीआई के साथ साथ एसक्यूएल या एक कुछ और सीखो साथ में, तो उससे आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है। एज एकदम अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो सिर्फ पावर बीआई से काम नहीं चलेगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सीखो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, only with Power BI when you want to start your job, it will not help you. ठीक है सर, थैंक यू। 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, फिर वो किसी भी लाइन में हो वो मैटर नहीं करता। अच्छा। पावर बीआई के साथ अगर आप एक चीज और कुछ एसक्यूएल या एज्योर या समथिंग एक कुछ और सीखते हो, देन यू कैन स्टार्ट विथ फ्रेशर आल्सो। ठीक है सर। हेलो सर। यस सर रेडिकल टेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट पार्टनर्स तो हो गया था इसलिए तो। क्या बोला, सॉरी? सर रेडिकल टेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट पार्टनर्स हो गए ना? हाँ, yes, after the course completion you will get the job consultancies as well. ओके। Okay, you will get certification and also you will get job consultancy, right? Anyone? All right, कुछ और questions किसी को? Okay, then I think we are good to close if no questions. Any questions, anyone? No, sir. Okay, thank you very much for joining. Have a good evening. We'll meet tomorrow. Yeah, good evening, sir. Thank you.